اتحاد انڈیا چینل پر آپ تمام لوگوں کا سواگت اور بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو اردو ادارے ہیں، چاہے وہ اردو اکادمی ہو، این سی پی او اور تمام جشن ریختہ جیسے ادارے، وہ جشن اردو کو لے کر اردو فیسٹیول لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہا ہے۔ اس وقت ان چیزوں پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ عظیم اختر صاحب ہے۔ عظیم صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اردو اکیڈمی ہو یا این سی پی ایل ہو یا جو بہت سارے جو اردو ادارے ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا اس جشن سے جو مشاعرے ہو رہے ہیں یا ادب کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے اردو کی ترقی ممکن ہے؟ دیکھیے جبھی صاحب، ایسا بیسیکلی دو چیزوں میں فرق کیجیے آپ۔ اردو زبان کا پروموشن اور ادب کا پروموشن جی، دو مختلف الگ الگ چیزیں ہیں۔ جب سرکار نے محسوس کیا کہ اردو کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا گیا ہے اور اردو کو ہوا میں لٹکا دیا گیا، تو انہوں نے 3 لینگویج فارمولا بنایا، جس کے حساب سے اسکولوں میں علاقائی زبان اور ہندی اور یہ زبانیں پڑھانا ضروری ہے۔ بدنصیب یہ ہے کہ اردو کو کسی علاقے کی زبان قرار نہیں دیا گیا۔ نتیجتاً کہ دلی ہندوستان میں اردو ایک قومی زبان تو ہے، علاقائی زبان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اردو اسکولوں میں نہیں پڑھائی جا سکتی۔ کسی بھی سرکاری اسکول میں اگر پڑھائی جائے گی تو علاقائی زبان پڑھائی جائے گی، ہندی پڑھائی جائے گی، سب۔ تو اردو کی تعلیم کا تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ جب حکومت نے محسوس کیا کہ اردو والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اردو والوں نے شور مچایا، تو انہوں نے اکیڈمیز کی شکل میں اردو والوں کی منہ بھرائی کی، یہ پیسہ لو، اکیڈمی بناؤ اور اردو کو پروموٹ کرو، سمجھے؟ یہ کام اردو والوں کے سپورٹ کر دیا گیا۔ اب اسٹیٹس میں اور مختلف جگہوں پر اردو اکیڈمیز قائم ہوئی، قومی کونسل قائم ہوئی۔ سب سے پہلے اتر پردیش میں اردو اکیڈمی قائم ہوئی، اس کے دیکھا جائے کہ مختلف شہروں میں ریاستوں میں اردو اکیڈمیز قائم ہوئی، جن کا بنیادی مقصد مشاعرے کرانا نہیں تھا۔ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اردو کو پروموٹ نچلی سطح پہ کیا جائے، نچلی سطح پہ اردو کو پروموٹ کیا جائے، تاکہ اردو کسی طریقے سے سروائیو کر سکے اور اردو کا پروموشن نہ ختم ہو۔ بدنصیب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اردو کو فروغ دینے کے جو ادارے قائم کیے، ان پہ اکابرین ادب نے قبضہ کر لیا، شبخون مار لیا، اور یہ اکابرین ادب کالج میں پڑھانے والے پروفیسرز نقاش ہیں۔ ان کا عوامی سطح پر اردو کو پروموٹ کرنے کا کوئی تعلق نہیں، کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، نچلی گراؤنڈ سے نچلی سطح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اردو کے ان انسٹیٹیوشنس پہ شبخون مار کے اس کی ورکنگ کو ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیک اس طرح کیا کہ مشاعرے ہو رہے ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، ورکشاپ ہو رہا ہے 3-4 دن کے ہفتے بھر کی۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کو کہتے تھے بھرے کو بھرنے والی بات ہے۔ اردو کا تو دامن خالی ہو چکا ہے اردو جاننے والوں سے۔ آپ پروموٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ادب کو کر رہے ہیں، زبان کو تو فروغ نہیں دے رہے نا۔ اب مشاعرہ ہوتا ہے، مشاعرے میں وہ سامعین زیادہ ہوتے ہیں جو اردو سے ناواقف ہیں، اردو شعر فہمی ان کا حصہ نہیں ہے، وہ صرف تفریح طبع کے لیے مشاعروں میں آتے ہیں۔ آواز گائی کی اچھی ہے، جو ہمارے خاتون شاعرات ہیں جو ادھر سے ادھر سے لے کے آتی ہے، مانگے کا ادالہ جیت گیا، وہ غزل سناتے، لوگ داد دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سطحی شاعری، ہلکی پھلکی شاعری، جو شعر نافہم سامعین کی بھیڑ کے ذہن میں اتر جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اردو کا بہت فروغ حاصل ہو رہا ہے، یہ فروغ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ کیا کرکٹ کے فٹ بال کے میچ میں اسٹیڈیم بھرا ہوا ہوتا؟ کیا کرکٹ پروموٹ ہو رہی ہے؟ کیا فٹ بال پروموٹ ہو رہی ہے؟ ہر آدمی کھلاڑی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ شائقین ہوتے، صرف تفریح کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ان مشاعروں کے اندر وہی لوگ آتے ہیں جو تفریح طبع کے لیے آتے ہیں۔ ابھی جیسے رہتا ہوا مشاعرہ ہوا، شام کو روز آ رہا، وہاں 3 دن رہا یا 2 دن رہا، 500 روپے کا ٹکٹ، شام کو بھیڑ جڑ جاتی تھی۔ بھیڑ جو انگریزی میں اردو کی تعریف کرتے تھے، ان کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو ہائی فائی لوگ ہیں
सिर्फ शाम की तफरी के लिए आ गए, यहाँ खाना भी है, जश्न रेख्ता के अंदर स्टॉल भी लगे होते, वैरायटी के मुख्तलिफ डिशेज के, वो खा रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज दिस, पूछा, अच्छा लेट्स सी, देखे, और बस बहुत अच्छा सवाल है। अब उनको शेर फैमिली को उतारू नहीं जाते, व्हाट इज शेर, शेर है क्या, और शेर के भाषण क्या है, उन्होंने सिर्फ गायकी को सुना, तारीफ करते हुए निकला है। तो इन चीजों से इस तरह के फंक्शंस में, जश्नों में, मेलों के अंदर भीड़ को देखने के लिए एक और सिलसिला निकाला। कोनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क के अंदर उर्दू जश्न मनाया जा रहा, 4 दिन का 5 दिन का। अब वहाँ है क्या, वहाँ खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं वो उर्दू के बेहतर से वाकिफ नहीं है, वो तो कनॉट प्लेस तफरीह के लिए आए थे, शॉपिंग के लिए, उनका क्या हो रहा है चलो है देख ले, वो आ गए समझे। तो आने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी शौक से आए हैं। अजीम साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उर्दू एकेडमी को सिर्फ आप एक नज़रिए से देख रहे हैं। आप उर्दू एकेडमी को सिर्फ आप एक नज़रिए से देख रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उर्दू एकेडमी सिर्फ मुशायरा करा रही है, लेकिन उर्दू अकादमी इससे और ज़्यादा भी काम कराती है। जॉब ओरिएंटेड के लिए बहुत सारे खत्ताती प्रोग्राम कोर्स कराती है। बेसिक उर्दू जो 1 साल का कुछ कोर्स भी अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले वो कराती है। सेमिनार है, अवार्ड्स फंक्शन वगैरह भी कराती है। तो इस पर आप हर चीज़ पे तनकीद तो नहीं कर सकते ना हम लोग किसी अकादमी को लेकर। तनकीद नहीं है, चीज़ों को उनके सही तराजू में देखना चाहिए। एकेडमी, दिल्ली एकेडमी ने या एनसीपीएल ने अगर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज शुरू की है तो अच्छा किया है। ये इनकी मजबूरी थी, मजबूरी क्योंकि इनके पास उर्दू को प्रमोट करने का कोई सिलसिला नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, वाज़ेह प्रोग्राम नहीं है। अब उर्दू पढ़े लिखे जो लड़के आ रहे हैं वो क्या करें, जॉबलेस हैं, तो उनको बरसों रोजगार लगाने के लिए, उनको रोजगार का करने के लिए इन लोगों ने अच्छा किया, सिलेक्ट किया, होना चाहिए था, होना चाहिए और आला पैमाने पर होना चाहिए, ताकि उर्दू पढ़े लिखे लड़का जब स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से बाहर निकल कर आए, प्रैक्टिकल लाइफ में अमल शुरू करे, तो बेरोजगार न रहो, उसको उसका रोजगार का सिलसिला होना चाहिए। ये तो आप तय कर लें कि आज उर्दू के स्कूलों में न पढ़ाए जाने की वजह से उर्दू हमारे रोजगार से कट गई है। एक हद तक सरकारी मुलाजमत तो उर्दू का कोई दखल नहीं है। इस तरह के कोर्सेज अगर हो गए तो यकीनन लड़कों को, जो लड़के वहाँ से तालीम हासिल करके निकलेंगे, उनको बेरोजगारी की शिकायत नहीं होगी। तो ये तो बहुत अच्छा काम है, ये होना चाहिए। बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि तामीरी बुनियादों पर काम किया गया है, लेकिन ये मजबूरी की हालत में किया है। उनको उर्दू को प्रमोट करने का कोई उनके पास वाज़ेह प्रोग्राम नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, तो क्या करें। मुशायरे बेमानी है, सेमिनार बेमानी है। अब जिसको कहते हैं ना आंसू पोंछने के लिए कि हम उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं, आप उर्दू को प्रमोट नहीं कर रहे, आप जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कर रहे हैं उर्दू पढ़े लिखे लोगों के लिए। कल अगर उर्दू पढ़े लिखे लड़के नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे, ये आपकी कोशिश धरे रह जाएगा ना। तो बुनियादी चीज़ वो है कि हमें लोअर स्केल से उर्दू जनरेशन, उर्दू नोइंग जनरेशन क्रिएट करनी चाहिए। उसका अगर उर्दू नोइंग जनरेशन, उर्दू जानने वाले बच्चे नहीं होंगे तो उर्दू आगे कहाँ चलेगी। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में उर्दू नहीं चल पाएगी। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले दिल्ली के कुछ कॉलेज में उर्दू थे, स्टूडेंट्स कम होते थे, वहाँ के असातिज़ा हज़रात 12वीं जमात का इम्तहान, जब 11वीं का इम्तहान का आता था, तो उन लड़कों के रिजल्ट, वो एड्रेसेस लेके घरों पहुँचते थे। वालिदैन से कहते थे हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में बच्चों को एडमिट कर रही है। तो ये काम तो स्कूल की सतह पे स्कूल के टीचर्स भी कर सकते हैं भाई। आप निचली सतह से अब आप बच्चों को स्कूलों में लेकर आएंगे तो आगे कॉलेज में भी जाएंगे। तो जब स्कूल कॉलेज का टीचर घरों में जाके उर्दू के लिए वालिदैन को तरगीब दे सकता है कि हमारे कॉलेज में दाखिल कराइए, फीस माफ कर देंगे, तो काम तो स्कूल के लेवल पे हो सकता है। स्कूल के लेवल पे 2 तरीके से हो सकता है। एक तो स्कूल टीचर्स अगर उनको प्रोत्साहन मिले, हमारा मसला ये है बदनसीबी कि स्कूल में उर्दू पढ़ाने वाले को प्लेइंग 11 में नहीं समझ आता है, उसे 12वां खिलाड़ी समझ आता है। ये बेमानी चीज़ है भाई। वही तो उर्दू के प्रमोशन के जिम्मेदार हैं स्कूल के टीचर्स, जो स्कूल के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी सतह पे, हायर सेकेंडरी सतह पे उर्दू पढ़ रहा है। सही मानो वही उर्दू को प्रमोट कर रहा है। उर्दू को जावेद अख्तर ने प्रमोट नहीं किया। उर्दू अकेडमी में जावेद अख्तर आपको उर्दू प्रमोशन का अवार्ड गलत दिया गया है, बेमानी अवार्ड है।
जावेद अख्तर साहब शायर है, अच्छे शायरों को हम उससे कोई ताल्लुक नहीं, गाने लिखते हैं, उनका कारोबार है, उस सतह पर है तो उनका अपने प्रोफेशन। तो वो आदमी जिसका प्रोफेशन है गाने लिखना, गाने उनके अच्छे खासे बिकते हैं, उस आदमी को आप उर्दू का प्रमोशन का अवार्ड दे रहे हैं, कितनी ज्यादती हुई। ये तो शर्मनाक बात है। आपके पास कुछ और नहीं मिला है? आप स्कूल टीचर को 5 लाख आपने उनको दिए हैं, जावेद अख्तर साहब को, आप 1 लाख स्कूल को टीचर को दे देते हैं, प्राइमरी सतह के स्कूल को टीचर को देते हैं, सेकेंडरी सतह में देते हैं, तो उन लोगों को टीचर्स को प्रोत्साहन मिलता है। भाई दिल्ली में अब तक उर्दू पढ़ाने वाले टीचर्स का एतराफ नहीं किया गया था, नहीं हुआ कोई। 2 साल पहले हमने किया, एक सोसाइटी एक कदम, गालिब एकेडमी में उस सोसाइटी ने उन टीचर्स को बाकायदा एतराफ किया उनकी खिदमत का, जिनके रिजल्ट 10वीं जमात तक अच्छे थे, 30-35 असातिज़ों को दिया। वो एक छोटी सी सोसाइटी, पैसे माली तौर पर कमजोर, उन्होंने 100 लाख मोबाइल तो दिया, लेकिन प्रोत्साहन तो हुआ, एतराफ तो हुआ ना। ये आप टीचर्स को क्यों नहीं कर सकते एतराफ? आप बड़े शायर का एतराफ करना बेईमानी है। 2 साल पहले वसीम बरेली साहब को अवार्ड दे दिया गया, गुलजार साहब को दे दिया गया। भाई क्यों दे रहे हैं आप इनको अवार्ड? इनका कोई उर्दू प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप उन लोगों को प्रमोशन का अवार्ड दे रहे हैं, तोहमत लगा रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, ये इनका उर्दू के फरोग से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं हैरान हूँ कि जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब या वसी साहब इन अवार्ड को वसूल करके बैठ गए। भाई इनको तो खुद कहना चाहिए था अखलाक के तौर पर, हमारे उर्दू के प्रमोशन से कोई ताल्लुक। मुशायरे पढ़ते हैं और मुशायरे पढ़ने के मुंह मांगे पैसे लेते हैं, मुंह मांगे पैसे लेते हैं। ये मुशायरों की कामयाबी के, गुलजार साहब तो मुशायरों की शायद नहीं है बेसिकली, वसीम साहब, जावेद अख्तर साहब वगैरह, ये लोग मुशायरों में जाते हैं, मुंह मांगे पैसे लेते हैं। आज़िम साहब, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि हम उर्दू ज़बान अगर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसकी ज़िम्मेदार हम किसी इदारे को नहीं ठहरा सकते। हम कहने के खुद भी तो ज़िम्मेदार है, जो उर्दू बोलने वाले घराने थे, आज वहाँ उर्दू नहीं बोली जाती, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तो वो कैसे मतलब शुरू होगा? सवाल ये है ना। देखिए ऐसा मैंने आपको बताया ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मल गए तो उर्दू स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि इलाकाई ज़बान नहीं है। दिल्ली में इलाकाई ज़बान नहीं है, यूपी में इलाकाई ज़बान नहीं, तो अब यहाँ के लोग किस तरह अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे उर्दू पढ़े स्कूल में, मैं किसी स्कूल में भी। उर्दू के जो स्कूल हमारे दिल्ली में होती है, उनका मेरा तालीम बहुत मस्त है बेसिकली। अब हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल कर अच्छे स्कूलों में जाए। अच्छे स्कूलों में है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ उर्दू नहीं है। तो अब क्या करे वाले? उर्दू अकेडमी या जो इस तरीके के लाए कायम हुए, उनका मकसद ये था कि सतही तौर पर, ज़मीनी तौर पर उर्दू को प्रमोट किया जाए। उसका तरीका ये था कि उर्दू को स्कूलों में लाने के लिए कुछ प्रोटेस्ट तो करते। भाई आपने एकेडमी की मेंबरशिप हासिल कर ली, चेयरमैन बन गए, वाइस चेयरमैन बन गए, लेकिन आपने उर्दू के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं की। आप हुकूमत को मजबूर तो करें कि जब तक आप उर्दू को स्कूलों में स्कूल के भाषा के तौर पर, जबान के तौर पर राइज नहीं कर सकते, उर्दू का प्रमोशन मुमकिन नहीं है। आप एकेडमी को 10 लाख की जगह 20 लाख दे दीजिएगा, उसी तरह खर्च कर देंगे। मुशायरे करेंगे, सेमिनार करेंगे, पैसा बढ़ जाएगा, अवार्ड दे देंगे, पैसा बढ़ जाएगा, अवार्ड मतलब आपका जो बजट है पूरा हो जाएगा। हमें बजट पूरा नहीं कराना। आपको अगर 15 लाख मिलते हैं, 1 करोड़ मिलता है, आप उसमें से उर्दू को प्रमोट करने के लिए आपने क्या खर्च किया, वो है बुनियादी चीज। और आपके जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, इसलिए बनाए गए थे सरकार ने कि उर्दू स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही, नहीं पढ़ाई जाएगी। अब आप प्रमोट कीजिए ना, तो आपके पास क्या वो है? कोई मंसूबा है? कोई मंसूबा नहीं है। आप मुशायरे कर ले, सेमिनार कर ले, उससे बेमानी, ये बेमानी खर्चा है जो पब्लिक पैसा जो है ना आप जाया कर रहे हैं। किसके नाम? उर्दू जबान के नाम पर। सरकार तो आपको पैसा देती रहेगी, हर साल आपको बजट बढ़ता रहेगा, आप खर्च करते रहेंगे। तो बुनियादी सवाल वही है कि इन इदारों की जिम्मेदारी यही है कि उर्दू को फरोग करने के लिए कोई जामा मंसूबा तो बनाएं। उर्दू अकेडमी को कायम को कितना साल अरसा गुजर गया, मेरे ख्याल में 30-35 साल होगा।
कौमी काउंसिल को, यूपी उर्दू अकेडमी वगैरह को, इनके यहाँ को सुबह बिल्डिंग कुछ हुई उर्दू को प्रमोशन के लिए निचली सतह पर। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को भूल जाइए आप। हमें तो उर्दू आने वाली नस्लें उर्दू नोइंग जनरेशन पैदा कर दी है। अगर उर्दू नोइंग हमारी नस्लें उर्दू तालीम याफ्ता नहीं होगी तो क्या फायदा उसका। देखिए, जबान ये नहीं कहा जाता बढ़ गई, जबान जिसको कहते हैं ना, इस ढलवा रुख पर है, उर्दू इस ढलवा रुख पर है, जहाँ इसके अब आप देखिए उर्दू को समझने वाले तो 100 में से 90 मिल जाएंगे, है ना। जो जबान आप बोल रहे हैं वो बोल रहा है, आप कहते हैं उर्दू, वो कहते हैं मैं हिंदी बोल रहा हूँ, दो बोलियां अलग अलग हुई। हमें स्क्रिप्ट भी तो जिंदा रखना है। अगर उर्दू स्क्रिप्ट पढ़ने वाले नहीं हुए तो आप कैसे कह सकते उर्दू जिंदा है। हाँ, उर्दू जिंदा रहेगी बोली की शक्ल में। बोली और जबान में फर्क करके आप देखिए, आज दिल्ली में आप चले जाइए किसी भी इलाके में, मुस्लिम इलाके में, गैर मुस्लिम इलाके में, वहां पर उर्दू बोर्ड नजर नहीं आएंगे, घरों पर उर्दू की तख्ती नजर नहीं आएगी, नेम प्लेट जिसको कहते रहा। वजह क्या है, दुकानदार और रहने वाले उर्दू नहीं जानते, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम को तो भूलिए, वहां तो उर्दू खत्म हो गई, वहां सेटर बंद हो चुकी उर्दू के लिए। इसलिए हम अपने ही लोगों में सोचते, हम कलमा गो के बारे में सोचेंगे ये तो उर्दू वाला, लेकिन वहां भी नहीं है ना। वहां भी उर्दू बहशत बोली की जिंदा हो रही है। अब आप मुस्लिम इलाकों में चले, मुस्लिम इलाकों घरों में आप 100 घरों को आप देखें, 100 में से 80% ऐसे लोग मिलेंगे जिनके यहाँ उर्दू का अखबार नहीं आता, जो उर्दू नहीं जानते। 20-25 साल का नौजवान जो शायद बाप बन गया है, उसके घर में उर्दू का अखबार नहीं आता, क्योंकि वो खुद उर्दू नहीं जानता। उर्दू का अखबार क्यों मंगाएगा भाई। अगर आपके यहाँ उर्दू आप जानते हैं, आपके यहाँ उर्दू का अखबार है, तो आपका बेटा कहेगा पापा ये क्या है। अगर आप उसको अली बेटे सिखा देंगे तो पढ़ेगा तो सही, क्या लिखा अखबार के अंदर, ये अखबार का क्या नाम है। तो ये तमाम चीजें हैं, इस पर यकीनन उर्दू वालों की अपनी जिम्मेदारी भी है, जिससे हम उर्दू वालों ने अपने आप को जिनको कहते हैं आंखें बंद कर रखी, जबानें जिंदा रहती। आप सिर्फ सरकार के बलबूते पर न रहिए। आप जब सरकार ने अकेडमी बना दी, उन लोगों ने वहां तो उर्दू की प्रमोशन के लिए जो कुछ पैसा देकर हाईजैक कर लिया गया है। आपने कोई प्रोटेस्ट किया कि आप ये जो कुछ कर रहा है गलत कर रहा है। क्या उर्दू वालों ने कभी किसी भी अकेडमी से पूछा कि आप ये सेमिनार या मुशायरे करके साल में 2 करते 4 करते, इससे उर्दू का क्या प्रमोशन हो रहा है। शायरों को यकीन प्रमोशन और 5,000 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है, उनका जरिया मुआश है, मुझसे बता लो। लेकिन बुनियादी चीज वही है कि उर्दू को प्रमोट करने के लिए हमें मुशायरे नहीं चाहिए, सेमिनार नहीं चाहिए, ये जश्न नहीं चाहिए, बेमानी है इनको। हमें तो उर्दू के स्कूल कायम कीजिए या उर्दू स्कूलों में पहुंचा दीजिएगा। हम उसके लिए अगर आप देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन तय करें तो उर्दू वाले आपके साथ देंगे। आप कुछ आगे तो बढ़े, आपको मनसूबा बना के सामने चलना कि हमने सरकार साहब ने रखा है। अब उर्दू वाले अगर आपके साथ कर दे तो उर्दू वालों को बेसिकली गलती होगी, लेकिन मैं समझता ऐसा नहीं है। उर्दू वाला जो अपने बच्चों को मजबूरन उर्दू नहीं पढ़ा पा रहा, उसकी ख्वाहिश है कि उसका बच्चा उर्दू पढ़े। क्यों? मेरी और आपकी मादरी ज़बान उर्दू है, हमारा मजहबी लिटरेचर सारा उर्दू में है भाई, सारा उर्दू में लिटरेचर। आज से 20 साल पहले जब बच्चों की शादी होती थी तो बहसी ज़बर दिया जाता था दहेज में। क्यों दिया जाता था? इस्लामी तालीमात का एक बुनियादी हिस्सा था वो। अब वो बच्ची उर्दू जाती थी, घर में पढ़ेंगे तो तालीमात का। तो इस तरह देखिए कि हमारा जो मजहबी लिटरेचर है उर्दू में है। हम अपने बच्चों को वो लिटरेचर अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे उनकी जबान में, तो कैसे वो मजहब से कैसे वाकिफ होगा। वो ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम ये छोड़ रहे साहब वो करेगा वो नहीं करेगा, हम क्या कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। एक नारा लगाया गया कि उर्दू को अपने बच्चों को 5वीं जमात के लेवल की उर्दू तो पढ़ा दीजिए। कैसे पहुंच जाइए? स्कूल से बच्चा आता है 2:30-3 बजे, थका है, उसका होमवर्क है, आप उसे कैसे उर्दू पढ़ा देंगे? आप नहीं पढ़ा सकते।
اور اس کے علاوہ یہ دیکھیے آپ ایک باپ کے طور پہ دیکھیے یا ماں کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو اسکول سے آنے کے بعد کتنا گھنٹہ دیتے ہیں پڑھائی کے اوپر، آپ کتنا اس کو دیکھتے ہیں. آپ کی بیگم تو یقین دیکھ لیتی ہے کیونکہ آج کل مائیں ہیں بچوں کی تعلیم کے بارے میں زیادہ کانشیس ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ ہر گھر میں ماں جو پڑھ رہی ہے وہ بچوں کو ہوم ورک کراتی ہے، وہ اردو نہیں پڑھا پاتی ہو کیونکہ خود اردو نہیں جانتی. بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ جب وہ ماں اردو نہیں جانتی تو بچے کو خالی وقت میں اردو کیسے پڑھائیں گی؟ اور یہ کام خالی وقت میں تو ہو سکتا ہے. بچے کو لو بیٹے علی بیٹے سیکھ لو. اس طریقے سے بچوں کو اگر ایک جذبہ ہو بچوں کو تو تعلیم اردو کو پڑھایا جا سکتا ہے گھر کے اندر. لیکن یہ توقع کرنا کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں کو اردو پڑھائیں ناممکن. یہ صرف ایک لالی پاپ ہے جو آپ ہمیں مجھے دے رہے ہیں اور دوسروں کو دے رہے ہیں، اس سے کوئی واسطہ فائدہ نہیں. اس سے دیکھیے جہاں تک ایوارڈ کا تعلق ہے، ایوارڈ دینا اچھی چیز ہے. اعتراف ادبی خدمات کا اعتراف ہوتا ہے، لیکن اکیڈمی جو ایوارڈ دیتی ہے نا اس میں بھائی بھتیجا واد زیادہ ہے، اس میں اپنائیت زیادہ ہے. جس طرح مشاعروں کے اندر آپ کے پاس شاعروں کی لسٹ ہوتی ہے ABCD ان کو بلا لو، اس سے اچھا شعر کہنے والے تو ہمارے چھوٹے علاقوں میں موجود ہیں، یو پی اور اردو اسپیکنگ علاقوں میں جو اچھا شعر کہتے ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ وہ اس لیے نہیں بلاتے کہ وہ گمنام ہے، ان کا نام نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں. آپ صرف مشاعرے میں جو چلنے والے شاعر ہیں جو آواز کے بل پہ یا دوسرے طریقے سے چلتے ہیں ان کو آپ بلا لیتے ہیں. جی اسی طرح ایوارڈ دیے جاتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو آپ کے حساب سے تعلق ہوتے ہیں. اب دیکھیے اس سال دلی اردو اکیڈمی نے جو ایوارڈ دیے ہیں اس میں ایک ایوارڈ ہے جو صحیح دیا گیا ہے. وہ شاعری کا ایوارڈ سلیم شیرازی کو ہے. سلیم شیرازی پچھلے 30-35 سال سے شعر کہہ رہا، اچھا شعر کہتے ہیں. اس کی اپنی خدمات کے طرف کے اچھا کیا آپ کو مبارک ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ خالد محمود صاحب جو پچھلے 2-3 سال پہلے چیئرمین تھے، وائس چیئرمین تھے، آپ نے ان کو ایوارڈ دے دیا. کیوں؟ نقد تنقید تھا. اوکے ہم مانتے ہیں. اردو اکیڈمی پچھلے 30-35 سال سے تنقیدی پروگرام کرتی آ رہی ہے، ہر سال پروگرام کرتے. 30 سال کا لیکھا جوگر رکھیے سامنے، اس کو دیکھیے کہ اردو اکیڈمی نے خالد محمود صاحب کو بحثیت نقاد کتنے پیپر پڑھنے کے لیے بلایا، ان کو بحثیت نقاد کے کتنے سیمینار مدعو کیا گیا، ان سے ایسا نہیں ہے. اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین بننے کے بعد وہ نقاد ہو گئے، آپ تنقید کا بڑا ایوارڈ دے رہے ہیں، کہ مذاق ہے. آج آپ نے ایوارڈ خالد محمود صاحب کو دے دیا، کل یہی ایوارڈ جو ممکن ہے 10 لاکھ کا ہو جائے آپ شہباز صاحب کو دے دیں گے کیا؟ اگر یہی رہی رشتہ داری تعلقات نبھانے کا تو اس کا مطلب یہ کہ جو سابق چیئرمین ہیں آپ اس کو ایوارڈ دیں گے. آپ نے آج خالد محمود صاحب کو دے دیا، خالد محمود صاحب کی جگہ آج یہ کام کرے شہباز صاحب نہیں ہوئے تو ان کو ایوارڈ دے دیا جائے گا. ارے بھائی اور بھی تو لوگ رشید کو ماجد سے دیکھو کیوں نہیں آپ ایوارڈ دے دیتے؟ ہاں وہ بھی تو شاعر ہے، آپ اس کو بھی طرف دیتے. ایسا نہیں ہے، یہاں صرف یہ ہے کہ میرے ذاتی تعلقات کو نبھانے کے لیے ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہمیں اس کو اعتراض ہے. اگر آپ کو ایوارڈ دینا ہے تو شفافیت تو برتی بھائی. یہ تو کہہ سکے کہ ہاں یہ ایوارڈ صحیح دیا گیا. آپ ایوارڈ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اس کو اچھا ایوارڈ پانے والے بھی تو کوشش کرتے ہیں مجھے ایوارڈ دے دیجیے گا. بھائی میں نے دیکھا ہے باقاعدہ ہمیں ایوارڈ دو، انڈائریکٹلی کہلا رہے ہیں کہ مجھے آج تک ایوارڈ نہیں ملا. تو یہ ایوارڈ اس لیے نہیں ہے بلکہ موٹی رقم ہے، 5 لاکھ روپے معمولی رقم نہیں ہوتی. اور سمجھاتا ہے کہ اب ہم بہت بڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہے. ایوارڈ کس طرح ملتے ہیں، کتابوں میں ایوارڈ کس طرح ملتے ہیں، سب ایوارڈ کس طرح ملتے ہیں اردو والے جانتے ہیں. ہم جیسے پڑھ لکھے لوگ تو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کھیل کیا ہے. اور عزت ملنے سے آپ اپنے طور پہ آپ کی ادبی خدمات کی طرف ہو گیا، لیکن